Hello. Today we start the decision tree. Am I audible? Yes. Hello. Sir. Good morning. Yes, sir. Yes. Morning, sir. Hello. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the last session we have finished our logistic regression. Today we start about the recent. So let me share my screen first with you. This is another algorithm of supervised learning. It applies on both regression as well as classification model. So what is decision tree? A decision tree is a decision support tool that uses to tree like graph or mode of decisions and their possible consequences, including chance event outcomes. So it is tree type structure. And resource cost and utility. It is one way to display the algorithm that only contains conditional control statements. Here we use the conditional control statement greater than, smaller than, equal to, like this conditional. So mostly we use the greater than, equal to, smaller than, equal to, smaller than, greater. Just no condition. A decision tree is a graph that uses a branching method to illustrate every possible outcome of a decision. Programmatically, they can be used to assign monetary, time, or other values to possible outcomes so that decision can be automatic. So decision tree problems are classification problem, जहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल जो होता है वो कैटेगरिकल होता है। रिग्रेशन प्रॉब्लम जहाँ पे जो हमारा टारगेट या रिस्पॉन्स वेरिएबल जो होता है वो न्यूमरिक होता है, जो हमने लीनियर रिग्रेशन में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि दो तरह के उसमें यूज होता है डिसीजन ट्री। आप देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया है यहाँ पे डिसीजन ट्री को। डिसीजन ट्री रिलाई ऑन रूल्स पे चलता है। टू अंडरस्टैंड बेटर वी टेक वन एग्जांपल ऑफ अ बैग फुल ऑफ बॉल्स। ये पूरा बैग है जो बॉल से भरा हुआ है। यहाँ डिफरेंट रेडियस की बॉल है, डिफरेंट कलर की बॉल है ना। उसकी रफनेस है, वेट है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी दी हुई है, वेट बॉल का, बॉल की रेडियस, बॉल का रफनेस, ठीक है, सरफेस।
दो क्लास है बॉल की। क्लास हमारा टारगेट वेरिएबल है, रेड और ग्रीन, वो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है। अब हम बात करते हैं कि इसमें रूल बनाएंगे हम कुछ, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसके डिसीजन फाइनल करेंगे। तो हमने पहला रूल बनाया रेडियस को, कि बॉल उसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो यस में चला जाएगा लेफ्ट साइड, और नो में यहाँ चला जाएगा। तो पहला रूल हमने यहाँ लगा दिया R1। इसके बाद हमारा सेकंड रूल लगा यहाँ यस वाले में कि वेट मोर देन 100 ग्राम। यदि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा रेडियस है, 100 ग्राम से ज्यादा वेट है, तो वो यहाँ चला जाएगा कि जो ग्रीन बॉल होगी, नहीं तो यहाँ चला जाएगा रेड बॉल होगी। इसी प्रकार तीसरा रूल यहाँ नीचे नहीं लगते, साइड में लगा है, स्मूथ और नॉट वाला। यदि स्मूथ बॉल है और 2 सेंटीमीटर से कम रेडियस है तो ग्रीन है, और स्मूथ बॉल है और 2 सेंटीमीटर से कम रेडियस है और स्मूथ बॉल नहीं है तो रेड है। व्हाट है? अब हम एक, ये हमारा मॉडल बन गया, कंडीशन हर जगह लगी है ना। We have to find the class of this ball. This is one ball. We don't know the color of this ball. We want to find out what is the color of this ball, but we have other characteristics. This ball has 89 gram of weight. It is smooth. The radius is 3 centimeter. So when we drop this ball here in this box, so it will filter here. Whether the radius is more than 2 centimeters, so it will go to the left side. And then we see here what condition applies. Smoothness is not applying here, but weight is 89 centimeters. So here the weight is greater than 100 gram will go here, and 89 gram is less than 100 gram will go here. So what color of wall this? It should be. Yes. Sir, what's the question again, please? We have to find the class of this ball. The characteristics is given. So you filter here and you find what color is this. ये रेड कलर होगा ना? हाँ, रेड कलर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से डिसीजन ट्री काम करता है। ठीक है, रूल्स पर डिपेंड। अब ये रूल्स कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, how do we make the decision tree? How do we make these rules? How do we select rules for each partition? When do we stop growing the tree? ये 3 चीजें। Our goal is to arrive at such terminal nodes which are as homogeneous as possible. हमें उस टर्मिनल नोड तक जाना चाहिए जहां पे हमारे जो आउटपुट है होमोजेनस हो, एक तरह के हो हर नोड में। These are called the node. These boxes are called the node. What it? तो हर नोड में एक तरह के वेरिएबल होता है, एलिमेंट्स होते हैं। What it? वहां पर तक हमें जाना है होमोजेनस। और वो सिंगल सिंगल पे तो नहीं जा सकते ना लास्ट तक। हाउ डू वी मेक डिसीजन ट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी मेक दीज रूल्स? सो फॉर कैटेगरिकल डेटा, स्मूथ और रफ सरफेस, स्ट्रिप्स वाली बॉल है, स्टार्स बने हुए हैं और सॉलिड कलर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे रूल बन जाते हैं। स्मूथ है या रफ है, एक स्मूथ रफ का रूल बन गया, एक स्ट्रिप्स का बन गया, यस नो, स्टार्स का बन गया, या सॉलिड कलर्स, यस नो, स्टार्स करके लिख दिया यस। तो ये तो कैटेगरिकल में कोई दिक्कत नहीं है रूल बनाना, है ना, कैटेगरिकल डेटा के लिए जिस रूल को बनाना।
कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल में जैसे 10 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक की बॉल है हमारे पास, तो हम उसको डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल में, 10 से 30-40 ग्राम, फिर 41 to 60 ग्राम, फिर 61 to 90 ग्राम, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। और फिर हम रूल जो बनाएंगे वो ग्रेटर देन 40 यस होगा तो वहां चला जाएगा, नो होगा तो जो 40 ग्राम से कम है उसमें चला जाएगा। तो ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 90, इस प्रकार से। गॉट इट? ये अभी जो प्रीवियस एग्जांपल आपने दिखाया था वो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों का था, राइट? टारगेट वेरिएबल क्या था उसमें, आपने क्या फाइंड आउट किया? कि कौन सी बॉल है जो जिसका वेट इज ग्रेटर देन और व्हाटएवर, उसमें नहीं, आपने कलर। हाँ कलर फाइंड आउट किया ना। टारगेट वेरिएबल क्या था? कलर था। हाँ कलर फाइंड आउट करना था ना आपको, हाँ। है? तो क्या था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी, कैटेगरिकल। अच्छा, कैटेगोरिकल था वो, ओके। ये तो रूल्स बना की बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कुछ न्यूमेरिक होंगे, कुछ कैटेगरिकल होंगे। हम्म। तो कैटेगरिकल के रूल कैसे बनेंगे और न्यूमेरिक के रूल कैसे बनेंगे? सब में कंडीशनल रूल चाहिए हमें इसमें। तो कैटेगरिकल के रूल तो सीधे सीधे जो जो कैटेगरी है वो यस या नो होते ही चले जाएंगे, समझ गए? हम्म। हम्म। जैसे स्मूथ, तो स्मूथ यस और नो, है ना? स्ट्रिप्स यस या नो, बॉल में स्टार्स बने बॉल में, तो यस या नो। सॉलिड कलर यस या नो। व्हाट इट? करेक्ट। कैटेगरिकल में दिक्कत नहीं है रूल्स बनाने में। मान लिया न्यूमेरिक तीन, में हमको इंटरवल न्यूमरिक देना में, पड़ेगा। हाँ न्यूमरिक में हमें ये इस प्रकार से इंटरवल देना पड़ेंगे, और फिर इंटरवल के बाद फाइनली हमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। व्हाट इट? ओके। ग्रेटर देन 40 तो उसमें सभी आ जाएंगे अप टू 200 तक। बात हम्म। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट नीचे जाके आ जाएगा कहीं पे ग्रेटर देन 60, फिर हम्म। ग्रेटर देन 90, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप रूल्स आते चले जाएंगे उसके, और फाइनली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या है। गॉट इट? ठीक है, सर ये लास्ट लाइन का मतलब समझ नहीं आया। A goal is to arrive at such terminal nodes which are as homogeneous as possible. देखिएगा, ये मैंने ही अभी एक्सप्लेन किया था, एक जैसी हो टर्मिनल नोट्स ये कहलाती हैं, जो लास्ट रो दिख रहा है। हम्म। तो इसमें जो आउटपुट आने चाहिए वो हमारे क्लास के हिसाब से होमोजीनस होने चाहिए, एक तरह के होने, जैसे रेड 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 आए या ग्रीन आए या ग्रीन आए या रेड आए, होमोजीनस अच्छा, होने चाहिए, एक तरह के होने चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, है फेयर ना? टारगेट वेरिएबल के हिसाब से, समझिए। या। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आप पिछले जो हाँ यहाँ पे, बोले। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे जब हम R1 आपने चूज किया लाइक हम्म। बाय डिफॉल्ट, हम्म। सो कैसे डिसीजन ट्री में हम ये चूज कर लें कि पहले जैसे R1 R2 R3 आपने डिवाइड किया है, तो यस, R1 ही बीच में सेलेक्ट करें, ये कौन से बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। यही चीज मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे, हाउ टू मेक दीज रूल्स। रूल्स बनाना तो समझा दिया मैंने, कैटेगरिकल में कैसे बनेंगे और न्यूमेरिक में कैसे बनेंगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाँ। दूसरा है, हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स फॉर ईच पार्टीशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम कौन से को पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, राइट। किस ग्राउंड। उसके बाद साइंटिफिक होना चाहिए कुछ, कि मैं भी करूं तो भी वही हो और आप करें तो भी वही, यही होना चाहिए ना, हाँ। साइंटिफिक। हम्म। तो वही मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है? ओके। ओके। इसमें हम इसको मेजर करते हैं, इसकी एंट्रोपी, इसका डेविएंस, या इसका जीन इंडेक्स। 3 हमारे पास मेजरमेंट है, तो 3 में से कोई एक हम लोग फॉलो करते हैं, और अलग एल्गोरिथम में जब हम आगे करेंगे हर एक में अलग अलग ये एंट्रोपी या जीन इंडेक्स है, ये वो किया जाता है। सो अवर गोल इज टू अराइव सच टर्मिनल नोड्स व्हिच आर एज, ये मैं हमेशा लिख रहा हूँ, हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स फॉर ईच पार्टीशन। ये हम देख चुके हैं। अब हाँ, ये अपन देखना है कि हाउ डू वी सिलेक्ट रूल्स फॉर ईच पार्टीशन। मैंने बताया कि होमोजेनिटी चेक करने के लिए एक तरह के हैं कि नहीं है, उसके लिए हम जो उपयोग करते हैं 3
मेथड यूज होते हैं, एक एंट्रोपी, एक जीनी इंडेक्स और डेविएंस। तो मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ, ठीक है। और ऑल्सो ये जो आप अभी डेसिशन ट्री दिखा रहे थे वो मोर और लेस बाइनरी ट्री जैसा दिख रहा है। बाइनरी रहते हैं सभी, हाँ, सभी में बाइनरी ब्रांच जाती हैं, ओके, 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 3 ब्रांच नहीं जाएंगी कभी भी, है अच्छा, ना। ठीक है। यस नो ही होता है ना ये, हाँ हाँ, इसलिए, यस नहीं है, ठीक है। ठीक है। जब हम एंट्रोपी की बात करें तो डू यू नो व्हाट डज इट मीन बाय द एंट्रोपी? एक जनरल सेंस में, मैं साइंस की डेफिनेशन नहीं चाह रहा हूँ, एक जनरल सेंस में बताएं आप एंट्रोपी क्या है। नहीं, No idea. नो आइडिया, एनीबॉडी? हाँ भाई, कोई और? फाइनेंस, सभ्य? आइडिया नहीं सर। देखिए क्या है एंट्रोपी को, यदि अपन समझने की कोशिश करें, जब हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या नियम है फिजिक्स में कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यदि आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, समझ गए ना। हम्म, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है और कुछ भी उसमें लॉस नहीं होता, जनरली लोगों का ये कहना है ना, पहले साइंटिस्ट का ये कहना था। बट एनर्जी का सम पार्ट, जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो लॉस होता है, और वो होता है एंट्रोपी। व्हाट, आई बात समझ में, बेसिक कंसेप्ट जो है। तो एनर्जी डेली अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, अपने जीवन में ही देखें आप, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तीसरे फॉर्म में ऐसे यूज हो रही है कि नहीं हो रही? आप खाना बना रहे हैं तो एनर्जी दूसरे फॉर्म में यूज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, ये बताएं, है ना। अपन चल रहे हैं तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यूज हो रही है, अपने बॉडी में अपन सांस ले रहे हैं तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यूज हो रही या, है ना। फॉर्मेशन तो चलता रहता है एनर्जी का, और फॉर्मेशन चलता रहेगा तो एंट्रोपी भी होती रहेगी, है ना। या, Entropy एंट्रोपी, is loss of energy. हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक अलग फॉर्म है, अपोजिट फॉर्म है एंट्रोपी। व्हाट इट, या, एंट्रोपी जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, कि एनर्जी जहां लॉस हो रही है वो एंट्रोपी अपन मान लो एक प्रकार से, एक सिंपल कंसेप्ट अपन लेते हैं। तो जैसे आप देखें कि अपना जो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई है वो एनर्जी से हुई है। सबसे पहले क्या था, शक्ति, अपन देवी को पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? शक्ति मीन्स क्या है? एनर्जी है ना, एक एनर्जी फॉर्म। तो इसके अगेंस्ट जो चीज है वो एंट्रोपी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का उल्टा। तो एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एनर्जी धीरे धीरे, जितना आप एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं धीरे धीरे, उस हिसाब से एंट्रोपी बढ़ेगी, और एक टाइम पे एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी पूरी। उसी को हम बोलते हैं कि जो वापस पूरा वर्ल्ड जो है एक पॉइंट में समा जाए, पूरा यूनिवर्स, सॉरी नॉट वर्ल्ड, वही चीज यहाँ पर एंट्रोपी वर्ड दिया गया है इसको। अब एंट्रोपी जितना ज्यादा हो, जो एंट्रोपी इज द लोएस्ट व्हेन द ग्रुप इज होमोजीनस, यदि ग्रुप हमारा होमोजीनस होता है, एक जैसा होता है, एंट्रोपी बहुत कम होती है, एक जैसा होगा तो। मतलब होमोजीनस है मतलब ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। सर ये माइनस में क्यों है? क्योंकि जब आप पी आई और लॉग पी आई लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है, एंट्रोपी इज नॉट ए पॉजिटिव,
तो इसलिए इसमें नेगेटिव लगाया गया लास्ट में। ये जो वैल्यू आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी, अच्छा। इसको माइनस लगा के पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। गॉट इट? ओके। माइनस में कैसे आ रहा वो नहीं पता चल रहा। मैं बताता हूँ, अपन एक एग्जांपल लेंगे भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत लॉगरिथम आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? लॉग, हाँ थोड़ा। हाँ भाई, जिसको भी नहीं मालूम बोले। मालूम है भाई बचपन में सबको? पढ़ा था। बचपन में पढ़ा था। लॉग क्या होता है? लॉग बुक रहती थी उसे करते थे। हाँ, लॉग का यदि कंसेप्ट देखें क्या है, मैं बताता हूँ। लॉग जो है वो एक्चुअली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु गणक, है ना? लघु करके गणना करना। पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं हमारे यहाँ, तो आपको हिंदी ग्रंथों में देखा है कि ज्योतिष शास्त्र में सब काफी कुछ दिया हुआ है। प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी पहले से डिसाइडेड है ना? और उन गणनाओं को कैसे करते थे ये? मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैन्युअली? पहले कोई ऐसे गणक तो थे नहीं हमारे पास, कैलकुलेटर ये सब नहीं थे ना। तो इस तरह की गणनाओं के लिए लघु गणक का आविष्कार हुआ। इसमें पावर ली जाती है, जैसे कि उसके अलग अलग आधार ले लिए उन्होंने, बेस ले लिए, बेस 10 हो गया, बेस ई हो गया, और भी बेस जो चाहे आप ले सकते हैं। बेस 2 भी होता है ना? हाँ, 2 भी होता है, मतलब जो भी बेस है आप ले सकते हैं। जैसे 10⁻³ कितना है? 1000 है। तो मैं इसका यदि लॉग लूंगा तो 3 लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। लॉग वैल्यू क्या आई मेरी? 3 आई। 3। तो अब मुझे इस 1000 की जगह मैं क्या यूज करूं? 3 गणना में। अच्छा। गॉट इट? इसका लॉग वैल्यू यूज कर रहा हूं 3, तो मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लूंगा, इसका जो भी लॉग होगा। तो ये लॉग मेरा 1 या 2 डिजिट में ही आएगा खाली। समझ रहे हैं आप? अच्छा। और ये भी, इसका भी लॉग लूंगा 1 या 2 डिजिट। तो लॉग के कुछ रूल्स हैं कि लॉग m इंटू n, आपने पढ़े होंगे पहले, लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग n। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, जहां मैं मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ m इंटू n, ये m है, ये मेरा n है, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जब लॉग m इंटू n लूंगा, इधर मैंने लॉग रखा, तो मुझे क्या मिला? लॉग m प्लस लॉग n करना है मुझे। तो ओके। लॉग m का जो वैल्यू आया है, मान लो वो मेरा आया 56, एक मैं हाँ। हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, ओके। और लॉग n का आया है 41। तो मुझे तो खाली 8 करके पता चल गया, हाँ हाँ हाँ। है ना? अब क्या हुआ है कि लॉग m इंटू n हो गया, मुझे जो भी गणना करना है, मल्टीप्लीकेशन का भी रूल है, डिवीजन का भी रूल है, सब चीज के रूल है लॉग में, है ना? तो लास्ट में मैं इसको फिर एंटी लॉग कर लूंगा, जो रिजल्ट आएगा पूरी गणनाएं करने के बाद, पूरे कैलकुलेशन करने के बाद। गॉट इट? तो मेरे एफर्ट्स कम हो गए ना, हो गए? Yeah. भाई इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं या डेसिमल में बहुत सारी संख्याएं हो तो मैं उसको कैसे करूंगा? तो उसके लिए लघु गणक का आविष्कार हुआ, और ये आविष्कार लोग अपने आपको मालूम है मैक्सिमम तो अपने वेदों में और उपनिषदों में है, सब काफी कुछ है। तो लघु गणक जो है वो भी भारत की देन रहा है शुरू से, क्योंकि ज्योतिषी में इसका बहुत उपयोग होता था लघु गणक का। ठीक है? ओके। अपना ही एक हिंदू ग्रंथ ही ऐसा है जिसने शुरू से ही लिखा कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है। पुराण में लिखा है पृथ्वी चपटी है ना? तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी बुद्धायन थ्योरम है, बुद्धायन ने उसको डेवलप किया था, बाद में पाइथागोरस के नाम से फेमस हुई। काफी चीजें हैं जो
अब अपन देखते हैं इस पे आते हैं कि ये एंट्रोपी कैसे निकलती है। तो लॉग, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया लॉग का क्या है? Yes, sir. है ना? हमने क्या किया कि जितनी भी क्लास हैं उतने ही आएंगे, एक दो उतनी टर्म आएंगी यहाँ पे, है ना? व्हाट इट, अपनी यहाँ दो ही क्लास है, रेड और ग्रीन, तो मैंने रेड के लिए आर लिख दिया और ग्रीन के लिए जी लिख दिया। तो ये खाली नोटेशन है, मतलब कोई गणना नहीं है, पीजी और पीआर, है ना? Yeah. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। आप देखें इस बॉक्स में कितनी रेड बॉल है? 3, 3 है। टोटल कितनी है? 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हुई? 3/5। हाँ. फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। Yeah. और लॉग पीआर, तो लॉग में भी 3/5। गॉट इट? Yeah. प्लस अब ग्रीन बॉल की बात करें तो क्या है? ये भी, ये 2 है, तो 2/5। गॉट इट? और लॉग 2/5 मैंने लिखा ना, समेशन पीआई लॉग पीआई, जितनी कैटेगरी उन सबका समेशन, इसी प्रकार से। ठीक है? Okay. इन 3/5 को यदि हम वो करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएगा 0.67, और log 3/5 का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो log 3 माइनस log 5 लिख सकते हैं हम इसको, Yeah. या डेसिमल में ही ले लें, 3/5 डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू निकालना, आजकल तो कैलकुलेटर है अपने पास, है ना? और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा -0.13। Okay. नेगेटिव क्यों आ रहा है? कि log 3 माइनस log 5 है, तो log 3 छोटा है, log 5 बड़ा है, बड़ा तो है. बड़ी वाली संख्या माइनस में आ रही है, इसलिए हमेशा हमें नेगेटिव देगा। अब समझ में आ रहा है नेगेटिव क्या देगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ये भी नहीं, कोई भी हो नेगेटिव देखोगे, जो प्रोबेबिलिटी में तो नीचे टोटल आउटकम होगा हमेशा डिनोमिनेटर में, Yeah. है ना? तो जहां जब भी हम लॉग में लेंगे तो नीचे तो बड़ा ही नंबर आने वाला है। व्हाट इट, तो हमेशा ही हमें नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव का सम करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। Yeah. तो ये भी फाइनल फिगर हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है? Okay. और इसको पॉजिटिव दर्शाने के लिए हम हमेशा माइनस साइन यूज करते हैं। Okay. अब समझ में आ गया एंट्रोपी? Yes, sir. तो जो एंट्रोपी हम सबकी लेंगे, जितने रूल बनाए हमने, जितने भी रूल बनाए, सबका एंट्रोपी निकालेंगे, बड़ा कैलकुलेशन। व्हाट इट, समझ रहे हैं? Yes, sir. जैसे अपन इधर आते हैं, वापस में आपको बताता हूँ। ये है एक एंट्रोपी इसकी, फिर एंट्रोपी इसकी, फिर इसकी, फिर इस रूल की, फिर इस रूल की, फिर इस रूल की, और इसके बाद और भी वेरिएबल चाहिए, तो एक ही वेरिएबल की, है ना? तो एंट्रोपी हम सिर्फ होमोजीनियस ग्रुप का लेंगे? नहीं, होमोजीनियस तो फाइंड आउट करना, होमोजीनिटी को तो फाइंड आउट करता है एंट्रोपी, कितना होमोजीनियस है कितना नहीं है, अच्छा. है ना? उसी का तो मेजरमेंट है एंट्रोपी। ठीक है? तो ये एक वेरिएबल है हमारा ना, 100 ग्राम वेट वाला, हाँ. 10 ग्राम से 200 ग्राम, इसके हमने रूल्स बनाए इतने सारे, 40 ग्राम से ज्यादा, 60 ग्राम से ज्यादा, 90 ग्राम से ज्यादा, ये रूल बने ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? न्यूमेरिक वेरिएबल के रूल हमने ये बनाए ना, ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 90 बनाए। Yeah. अब क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 40 जितने होंगे हमारे पास उस डेटा में, वो हम काउंट करेंगे। गॉट Okay. इट? और टोटल से डिवाइड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 40 की। हाँ. और जो ग्रेटर देन 40 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ऐसी ग्रेटर देन 60 की आएगी। सर, तो हम यहाँ पे जैसे इंटरवल हम कैसे चूज करेंगे? जैसे 40, 60, 90 है, ये तो अपने हिसाब से बाइंडिंग करना है नेता। कुछ भी ले सकते हैं, राइट? अपने लाइक हिसाब से, बहुत 30 ज्यादा भी भी ले नहीं हो, सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, ओके. बहुत ज्यादा नहीं हो जाए कैटेगरी, एक ऑप्टिमम रहे, बहुत कम भी नहीं हो और बहुत ज्यादा भी नहीं हो। ठीक है? ठीक है. तो इसका एंट्रोपी देखेंगे, इन सबके एंट्रोपी देखेंगे, सभी रूल के अलग अलग एंट्रोपी निकलेंगे। मतलब ये एक एंट्रोपी में सब मत ले लीजिएगा आप कि ग्रेटर देन 40 तो ग्रेटर देन 60 उसके बाद लिख दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। व्हाट इट, तो क्या ग्रेटर देन 40 में दो ही आएंगी
एक ग्रेटर देन 40 और एक नॉट ग्रेटर देन नॉट मतलब सॉरी स्मॉलर देन और इक्वल टू 40, ये दो प्रोबेबिलिटी आएंगी। हाँ। समझ रहे हैं? Yeah. तो इन दोनों के हिसाब से एंट्रोपी निकलेगी। ऐसे ग्रेटर देन 60 में भी एक ग्रेटर देन 60 और एक नॉट ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 60। गॉट इट? यस सर। ऐसे हर एक की अलग अलग एंट्रोपी निकलेगी। समझ में आ रहा है आपको फाइनेंस? Yes, sir. हाँ भाई शैलू यस सर। सभी हाँ सर। तो हर एक की अलग अलग है, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। ये तो अपन ने एक वेरिएबल का किया वेट का, मान लो आपके उसमें 20 वेरिएबल है या 45 वेरिएबल है। कैटेगरी है तो कैटेगरी की भी निकालना है। अब मान लीजिए 3 कैटेगरी है, अभी तो अपन ने देखा स्मूथ और स्ट्रिप्स यस नो कर दिया है ना। अब ये सरफेस की कैटेगरी थी, अब मान लो 3 कैटेगरी है ना। 3 कैटेगरी में एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। कलर की बात करते हैं है ना। अभी कलर में 2 थे, मैंने 3 ले लिए, रेड ग्रीन ब्लू। ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। मैं टारगेट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, टारगेट वेरिएबल नहीं है सपोज कर लो। टारगेट वेरिएबल नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। टारगेट नहीं ले रहा हूं मैं अभी इसको, थोड़ी देर के लिए। अब मैंने तो बताया कि भाई कैटेगरी जो है मैं ले लूंगा इसके अंदर, ये कैटेगरी हो जाएगी रेड एंड ग्रीन और एक कैटेगरी हो जाएगी ब्लू। व्हाट इट? ये रूल हो जाएगा मेरा। ओके यदि रेड या ग्रीन होगी तो यस और नो। ओके। ऊपर से आएगा सॉरी कलर है ना, यस और नो। यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं। एक सेकंड इसको रफ करो। हाँ यहाँ अपन दूसरी चीज करेंगे। क्लियर हो गया? रेड एंड ग्रीन यस है तो इधर आ गए। नीचे से फिर अलग से नो और यहाँ फिर अलग आएगा। रेड एक में फिर ग्रीन हाँ, वाला। हाँ इसमें अपन रेड ले लेंगे खाली। मान लो कि रेड है, ये रूल था रेड एंड ग्रीन का है ना। तो यस में इधर आ गया और नो में इधर आ गया। अब जो नेक्स्ट रूल मैंने बनाया वो खाली रेड का बनाया। गॉट इट? तो यस में आ गया, जो रेड नहीं है मतलब ग्रीन है वो यहाँ आ गया। अब समझ में आ गया यस है ना। तो रेड और ग्रीन का दोनों का हम काउंट करेंगे एक साथ और टोटल से डिवाइड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा, उस हिसाब से एंट्रोपी निकल जाएगी। अंडरस्टैंड? ओके। तो ऐसे हमें सबकी एंट्रोपी मालूम करना पड़ती है और इसको यदि मैनुअली करें ना तो इट्स अ वेरी बिग कैलकुलेशन। होगा कि नहीं होगा? घंटों लग जाएंगे आप, इतने सारे वेरिएबल हैं सबकी एंट्रोपी निकालना है ना। और जिसकी सबसे कम होगी उसको हम टॉप पे रखेंगे। अब समझ में आ गया? संगीता ने पूछा था ना क्वेश्चन, ये किसने पूछा था उससे रूल वाला है? किसने? शैलू ने पूछा था। शैलू समझ में आया? यस। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। व्हाट इट? मतलब साइंटिफिक है कि हम हर किसी रूल को हम पहले नहीं रख दे रहे हैं। हाँ रूल बनाना हमारा सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा मैटर कि हो सकता है कि मैं रेड और ग्रीन साथ में ले रहा हूं, आप रेड और ब्लू ले रहे हो साथ में। व्हाट इट? क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर यहाँ पे तो खैर कैटेगरीज की बात होगी जब, बट हम जब डेटा की बात करते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा की बात करें न्यूमेरिकल डेटा में कैसे करेंगे तब कैसे डिवाइड करें? उसको भी हमने कंडीशन बनाया ना। ये क्या किया न्यूमेरिकल का? तो हम सेंटर पॉइंट लेंगे? नहीं, कहाँ सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। अच्छा आप टारगेट वेरिएबल यदि न्यूमेरिक हो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्लास दिया था टारगेट वेरिएबल, यहाँ क्लास दिया था, ये फाइंड आउट करना, ये टारगेट वेरिएबल था है ना। हाँ।
आप इसकी बात कर रहे हैं, यदि ये न्यूमरिक हो तो। हाँ हाँ, तब हम क्या करते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट अप्रोच का अप्लाई करते हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा नीचे जाके। ठीक है, बताऊंगा, मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया हाँ ये क्या होता है एंट्रोपी? लो एंट्रोपी वाले को सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी एंट्रोपी आएगी, फिर तीसरी एंट्रोपी आएगी, ऐसे उस प्रकार से हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके एक और मेजरमेंट है जीनी इंडेक्स, वो भी सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। सब ने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं। इसका फॉर्मूला है 1 - समेशन ऑफ PI²। तो आपको यहाँ लॉग नहीं निकालना पड़ रहा। ठीक है, गॉट इट? तो यदि मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करूं, कि जीनी इंडेक्स 1 - PI, probability of red प्लस probability of green, गॉट इट? यही होगा कि नहीं? यही मतलब हुआ ना समेशन, यानी जो भी आपकी कैटेगरी, दो कैटेगरी, रेड एंड ग्रीन, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, गॉट इट? जस्ट अ मोमेंट। Oh yeah. हेलो, हाँ क्लियर हुआ? हेलो, यस सर देखिए ये अभी अपन ने जो पहले एग्जाम्पल में लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल जो शुरू में लिया था, जब मैंने पूरा ट्री बना के बताया था, वहां ये टारगेट वेरिएबल था रेड और ग्रीन, गॉट इट? ओके हाँ यहाँ ये टारगेट वेरिएबल नहीं ले रहा हूं मैं, इसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है ओके ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ये निकाली जाती है एंट्रोपी जीनी इंडेक्स, है ना? टारगेट तो अपने आप फाइंड आउट होगा, है ना? ओके नीचे जाएंगे तो टारगेट तो मिल ही जाएगा ना, अंडरस्टैंड? तो देखिएगा 1 - P(r), 3/5 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 3/5 का स्क्वायर करके देखिए, आप लोग कैलकुलेटर मुझे बताएं।
3/5 का 0.12, कितना आ रहा है? 2/5 का 3/5 का कितना है? स्क्वायर कर 0.1 लीजिए। हैं? 0.12 और इसका 0.08। 0.20, 0.80। Got it? Understand? Yeah. इस प्रकार से हम जीन इंडेक्स लेंगे और जिसका काम होगा उसको हम फर्स्ट रूल रखेंगे। गॉट इट? ये भी एक तरीका है। अंडरस्टैंड? हम नेक्स्ट पे आते हैं। शायद गलत है वो, 3/5 का गलत है शायद, नहीं? कितना है? वही मैंने कहा आप लोग कैलकुलेट 0.36 आ रहा है उसका, मैंने से किया। स्क्वायर किया उसको। हाँ 0.6 आया, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 होगा, राइट? हाँ, फिर इसका है 2 डिवाइडेड बाय 4 और 0.16 इसका आ रहा है 2/5 का। स्क्वायर करके हाँ तो कितना आ रहा है? 0.51 नहीं 52। Got it? यस सर, वेट फॉर इट। Understand? हो गया? ओके ऐसे हम सभी का जीन इंडेक्स जैसे एंट्रोपी निकाल रहे हैं, या तो आप ये मेथड ले लें या वो मेथड ले लें। सर, अभी यहाँ पे ये जीनी इंडेक्स लिया, तो इसके बेसिस पे हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं? देखिए आपने रूल बनाए इतने सारे, हर वेरिएबल के लिए आपने रूल बनाए। हाँ आपने कैटेगरी के लिए अलग रूल बनाए, आपने न्यूमरिक के लिए अलग रूल बनाए, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाली सब कंडीशन बनी कि नहीं बनी? हर एक रूल का हम लोग या तो एंट्रोपी लेंगे या जीनी इंडेक्स लेंगे, कोई भी एक चीज लेंगे। ओके हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा रूल पहले प्रायोरिटी में रखें, कौन से रूल को बाद में रखें। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके ऐसा थोड़ी हम रेंडमली कोई भी रूल रख देंगे। तो फिर वो साइंटिफिक रहेगा ही नहीं ना। रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बट ये वाला कौन से रूल के लिए अप्लाई होगा यहाँ पे, जब हम कोई रेड भी और ग्रीन दोनों कोई भी लेंगे? देखिए, कोई भी एक मेथड यूज करना है आप। अपन देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। या उसमें कितने मेथड होते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन द कोएफिशिएंट, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, तीन होते थे नहीं होते थे? या तीनों मेथड में से कोई भी एक अप्लाई करो, फाइनल रिजल्ट सेम आता था। या ऐसे ही ये तीन मेथड है, या तो आप जीनी इंडेक्स से चले जाओ, या आप एंट्रोपी से चले जाओ, चाहे आप डेविएंस से चले जाओ। बट इट आप जो मॉडल बनाओगे उसका जो फाइनल आउटपुट होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। Got it? ओके तो कोई भी एक मेथड लेना है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके लिए जीन इंडेक्स लेंगे, इसके लिए डेविएंस लेंगे, इसके लिए एंट्रोपी लेंगे। एनी वॉट एवर यू लाइक। आप समझ में आ गई? रूल की प्रायोरिटी को होमोजेनिटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। Got it? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप। हो गया? हाँ या ना? आप में से कोई भी हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल सर, रहा ये है। जीनी इंडेक्स तो आया समझ में,
और एंट्रोपी भी आया समझ में, बट एंट्रोपी का तो बाकी उसमें देखा ना, लेकिन मेरा यहाँ पे डाउट ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ रेड एंड ग्रीन का तो जीनी इंडेक्स हमेशा यही रहेगा, तो हम इसका प्रायोरिटी क्या रखने वाले हैं? ये तो एक वेरिएबल है मैडम, ये एक वेरिएबल लिया है जो डेटा का, एक डेटा का आपका एक ही वेरिएबल है। ओके ऐसे आपके डेटा में 45 वेरिएबल है। ओके ओके, गॉट इट। अच्छा अब ये एक ही रूल है, अभी अपन के बहुत से रूल बने हैं। ओके ठीक है, अभी समझ में आया। जितने रूल होंगे सबका निकालेंगे ना, मतलब ओके एक वेरिएबल में भी कई रूल हो सकते हैं। यहाँ तो चलो 2 ही कैटेगरी थी इस वेरिएबल में, तो एक ही रूल बना। मान लो 3 होती, जैसे मैंने रेड एंड ग्रीन ले लिया और एक ब्लू ले लिया, हाँ, वही समझने की कोशिश कर रही थी तो मैं। रेड ग्रीन अभी का अलग निकलेगा एक साथ और ब्लू का अलग निकलेगा। अलग हर निकलेगा। रूल वाइज निकलता है, ये रूल वाइज निकलेगा, ओके कैटेगरी अब वाइज नहीं निकल रहा कि रेड कैटेगरी का अलग और ब्लू का अलग और ग्रीन का अलग, ऐसा नहीं निकाल रहा हूँ मैं। रूल बनाया, मैंने रूल बनाया रेड एंड ग्रीन, तो रेड रेड ग्रीन को साथ में ही लेके प्रोबेबिलिटी लूंगा और हाँ ब्लू की अलग लूंगा। हाँ, मैं वही समझने की कोशिश कर रही As थी per अब। the rule, we have to apply this method. Now everybody understand? जितने रूल उतने बार कैलकुलेट करना है, हर रूल के लिए अलग कैलकुलेशन होगा, है ना। हर रूल ओके की एंट्रोपी निकलेगी, ओके गॉट इट। यस या आप जीनी इंडेक्स ले रहे हैं तो हर रूल का जीनी इंडेक्स निकलेगा। कोई कंफ्यूजन अब? नहीं। ठीक है, सबको क्लियर हो गई ये चीज? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मेजरमेंट एंट्रोपी और जीनी इंडेक्स की तरह डिविएंस। अब ये तीनों इसलिए बता रहा हूं कि जब हम आगे एल्गोरिथम में यूज करेंगे, इसके लिए जो सिंटैक्स यूज करेंगे जो प्रैक्टिकल में आर में या पाइथन में, तो हर मेथड एक अलग मेजरमेंट यूज करता है। कोई एंट्रोपी यूज करता है, कोई डेविएंस यूज करता है ना, उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या यूज हो रहा है। तो सबके अपने डिफॉल्ट है, इसलिए हम तीनों समझ रहे हैं, है ना। हालांकि काम सबका एक ही होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट हमें सेम आउटपुट मिलेगा लास्ट में। यहां देखिएगा, यहां है समेशन ऑफ आई बिलोंग्स टू के आर द नंबर ऑफ कैटेगरी एन आई लॉग पी आई। यहां पी आई की जगह एन आई है, जो जिन इंडेक्स में क्या था, यहाँ पे पी आई था, हाँ यहाँ एन आई है, लॉग पी आई। तो जिन इंडेक्स इज 0 व्हेन द ग्रुप इज होमोजेनस। यहाँ पे हम डेविएंस की बात करेंगे, मैंने डेविएंस लिखना था। तो जो डेविएंस भी 0 जो होता है वो होमोजेनिटी को शो करता है। सो यहां पर यदि हम देखें एन लॉग पी आई, एन आई लॉग पी आई। अब एन आई यानी कि यदि मैं इसको देखूं, सो यहाँ पे एन क्या डिनोट करता? एन उस कैटेगरी की कितनी संख्या है। देखिए मैं बताता हूं, मैं रेट की बात करूं तो रेट कितनी है, 3 3 इंटू ऑफ लॉग। log 3/5, what it ओके plus 2 2, 2 ऑफ लॉग 2/5। what it। ओके तो ये इन सब का समीशन जो होगा वो डेविएशन होगा, अपना मतलब डेविएंस होगा, गॉट इट, या अंडरस्टैंड। ओके तो अब आप देखेंगे 3 इंटू, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, ये 3/5 का अपन देखें लॉग, जो भी वैल्यू आएगा, मैंने लिखा नहीं है उसको सेपरेटली, तो जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ आ जाएगा। और 3/5 का जो होगा वैल्यू वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेचुरल नेगेटिव होगा। पर सॉरी ये स्क्वायर है तभी तो पॉजिटिव दे रहा हूँ, वही मैं सोचूं क्यों नेगेटिव आ रहा है, वही मैं कंफ्यूज था। इट इज 0.69 है
पता नहीं मैं सही कर। ये होगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। सर ये तो जीनी इंडेक्स था ना? नहीं, जीन इंडेक्स, सॉरी, जीन इंडेक्स पे कहाँ गए हम? एक सेकेंड, मुझे लेके वहां जाना था। अब तो डिवियंस पे था। डेवियंस पे ले आया मैं, ठीक है। सर ये तो है। स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना? ओ हो, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? जीन इंडेक्स का देख लिया मैंने, सॉरी, वही गड़बड़ हो गया, सही बोल रहे हैं आप। फिर से करते हैं इसको। दोनों का लो। क्या हो रहा है? ये n3 into log 3/5 plus 2 into log 2/5, okay, ये हमें करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? तो इससे भी हम लोग निकालेंगे, इसमें जो कम होगा उसको पहले रूल पे सेट करेंगे, बाकी के बाद में करेंगे, ठीक है? गॉट इट? सेम अप्रोच, एनी डाउट? सर यहाँ पे लॉग का हम कुछ भी बेस ले सकते हैं? यहाँ बेस ई है सब में, सब में बेस ई है। -0.5 2/5 का कितना है? अच्छा 2/5 का -0.2। सर दोनों माइनस में आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव बताएगा डेविएंस हमेशा, है ना? हाँ तो इसका जितना कम होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव है ना, so वो पहले आएगा। -0.9 प्लस -0.51 so इसको आप कर लें, समेशन कर लें, कितना आ रहा है? -1.4 है ना? तो जिसका भी कम होगा उसको हम पहले रखेंगे उस रूल। एनी डाउट? मतलब माइनस में जिसका भी नंबर ज्यादा होगा वो वाला। हाँ, वो ठीक है। ओके तो ये हम लोगों का मेजरमेंट हो गया कि रूल कैसे सिलेक्ट होंगे। दो चीजें तो हो गई। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास इसमें, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कि हम कहाँ ट्री को बढ़ने से रोकेंगे। व्हाट इट भाई, ऐसा तो नहीं पेड़ उगाते चले जाएं और लास्ट एक एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाएं, सिंगल ऑब्जर्वेशन पे, है ना? ऐसा तो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा और कोई मतलब ही नहीं हमारा मॉडल वो तो हमें उसको कहीं ना कहीं तो रोकना है। तो रोकने के लिए जो हमारे पास तरीका है, जो तीसरा पॉइंट था, ये मैं आपको बताता हूँ। When do we stop growing the tree? है ना? तो पहले तो गोल का ध्यान रखें। Our goal is to arrive at such terminal nodes which are as homogeneous as possible. तो ये हमारा गोल था। तो हमने जो पहले तो रूल बनाया, रूल वाज द सब्जेक्टिव,
रूल के बाद जो हमने रूल को डिसाइड किया कि कौन से रूल को हम प्रायोरिटी देंगे, वो होमोजेनिटी के मेजरमेंट के हिसाब से दिया हमने Okay. एंट्रोपी या इसके द्वारा। और इसको ग्रोइंग भी करना तभी रोकेंगे जब हमें लगेगा कि यार ये अब एक जैसी आ गई है, मैं लगभग Okay. एग्जैक्ट तो नहीं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, when do we stop growing the tree? when node is pure, not pure हो जाए, एक जैसे आ जाए, होमोजेनिटी आ जाए उसमें, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बचे उसके अंदर, है ना, and a partition should result at least k unit decrease in entropy Gini index, k unit उसमें decrease हो, ना, k यानी जितनी कैटेगरीज है, Okay. उस हिसाब से वो कम से कम उतना वो डिक्रीज हो, टोटल जितने रूल बन रहे हैं। Okay. गॉट इट? हम्म। मतलब जितने रूल बनाए हैं वो पूरे रूल अप्लाई होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये कहने का मतलब है, तब हम उसको रोक देंगे, पूरे रूल आपके अप्लाई हो जाए। अब क्या होता है कि आपने रूल बनाए, आपने उसको अप्लाई किया, और डिसीजन ट्री की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि वो ट्रेनिंग डेटा के साथ बहुत ज्यादा बायस रहता है। जो मॉडल आपका बनेगा वो ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। गॉट इट? जब आप नया डेटा उस मॉडल में डालते हैं प्रिडिक्शन के लिए, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अंडरस्टैंड? Okay. तो ये इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डिसीजन ट्री का। जहां मैंने लिखा है स्टेटमेंट कि सरप्राइजिंगली द गुड एंड बैड बोथ थिंग्स आर सेम फॉर ट्रीज। ट्रीज के लिए अच्छी और बुरी चीज दोनों एक जैसी। ट्रीज आर वेरी गुड एट कैप्चरिंग पैटर्न इन द डेटा। डेटा के पैटर्न को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पैटर्न को पकड़ लेता है, उस डेटा के अंदर के पैटर्न को पकड़ता है, बट इट्स बायस टू ट्रेनिंग डेटा। पता है ना, मैंने ट्रेनिंग डेटा की तरफ बायस हो जाता है। तो जब रियल टाइम डेटा या टेस्ट डेटा हम डालेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, and not gives the better result on test data। ठीक है ना? अब इस चीज क्या बचने के लिए हम क्या करें? तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक बोलते हैं, क्रॉस वैलिडेट करते हैं हम लोग इसको। तो जनरली आपने देखा पिछले मॉडल में हम डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। Right. यहाँ एक और एल्गोरिथम, एक और हम लोग यूज करते हैं क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। अंदर यूज होती है, पहले तो डिवाइड तो दो ही पार्ट में करते हैं, है ना? फिर ट्रेनिंग को डिवाइड करें। हाँ, ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हम वो CV फंक्शन यूज करते हैं और वो उसको डिवाइड, अब कैसे डिवाइड करता है मैं बताता हूँ। Okay. उस ट्रेनिंग डेटा में इसने मान लो, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ समझ में आएगा, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, है ना? Okay. तो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसका हमने अपने हिसाब से 4 फोल्ड 5 फोल्ड में डिवाइड कर लेंगे रेंडमली। Okay. अगेन मतलब पहला कुछ ऑब्जर्वेशन F1 में ले लिए, कुछ F2 में ले लिए, कुछ F3 में ले लिए, कुछ F4 में, कुछ F5 रेंडमली। Okay. गॉट इट? अब जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है उसके लिए हम F1 को पहले एक टारगेट वेरिएबल बनाएंगे इंटरनली। Okay. मतलब टेस्ट डेटा, सॉरी टारगेट वेरिएबल नहीं, क्या टेस्ट डेटा F1 है हमारा। तो जब F1 टेस्ट डेटा हो गया तो बाकी का ट्रेनिंग डेटा हो गया, F2 F3 F4 F5। गॉट इट? अच्छा। ये ट्रेनिंग डेटा होगा। Okay. इस तो ट्रेनिंग, F2 हाँ ये ट्रेनिंग जो डेटा है वो कॉम्बिनेशन रहेगा बाकी हाँ, 4 सेट का, मींस ठीक है, एक ऐसा अगर है। लेते हैं तो। हाँ, तो अब क्या किया कि ये हमारा ट्रेनिंग डेटा हो गया। इस ट्रेनिंग डेटा पे हमने डिसीजन ट्री बनाया, गॉट इट, इंटरनली, और टेस्ट डेटा डाला इसके अंदर, गॉट इट, Okay. इवेल्युएट करने के लिए। तो टेस्ट डेटा का भी हमारे पास टारगेट वैल्यू है,
हाँ रिस्पॉन्ड वेरिएबल की, और प्रेडिक्टेड वैल्यू भी मिल जाएगी हमें, क्योंकि जब मॉडल में डालेंगे तो व्हाट इट। ओके ओके तो उन दोनों वैल्यू का माइनस जब करते हैं, y माइनस वाई कैप जो आपने देखा था पहले, है ना, वो कुछ एरर देगा, वही एरर होती है, वो इवन होगी। ओके ओके, ऐसे ही हमने दूसरे फोल्ड का सबकी एरर ले ली, ठीक है, और वो क्रॉस वैलिडेशन एरर बोलते हैं हम इसको। समेशन ऑफ ई आई सबकी एरर का 8 किया, और टोटल नंबर ऑफ एरर कितनी है, 5 से डिवाइड कर, ओके तो हमें सीवीई मिला। तो मीन ऑफ ऑल द एरर्स। हाँ, तो ये सीवीई जो होगा, जैसे जैसे ट्री का साइज बढ़ेगा, ये साइज है एक्स एक्सिस पे देखिएगा, साइज हाँ लिखा है मैंने, वाई एक्सिस पे मैंने एरर लिखी है, ठीक है ओके ना। तो ये तो एक्चुअल एरर है ग्रीन वाली, ये तो कम ओके होती चली जाएगी जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, तो आप सिंगल नोट पे पहुंचोगे ना, राइट सिंगल ऑब्जर्वेशन पे पहुंचते जाओगे आप, तो हाँ सिंगल ऑब्जर्वेशन पे एरर तो वैसे ही कम होती चली जाएगी, कि नहीं हाँ होगी। जब आप या वन वन ऑब्जर्वेशन पे पहुंच जाओगे तो वो तो फैक्ट तो वही दे रहा है। तो पर हम सिंगल ऑब्जर्वेशन पे क्यों पहुंचेंगे, वो राइट तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना। हाँ तो हमें इसको कहीं ना कहीं तो पेड़ को खत्म करना है ना, बढ़ने से रोकना है। तो सीवी वहां हेल्प करता है कि जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो एक समय तक तो कम होगी, उसके बाद फिर बढ़ने लगती है ऑटोमेटिक। अच्छा ये ये वाला हाँ, कहाँ से आ रहा है पर्पल वाला कर्व? ये इसका है एरर का, एरर का, इस वाले पर्पल एरर का, सीवी का, और ये जनरल एरर का कर्व है, अच्छा जो मॉडल की एरर है। मॉडल का साइज बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होती चली जाएगी, ओके अच्छा और क्रॉस वैलिडेशन एरर क्या करता है, एक लेवल तक कम होगी और उसके बाद भी आप उसको बढ़ाते तो ये बढ़ने लगेगा। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम्म, जैसे कि आप हमने यहाँ पे पार्टीशन किए हैं तो जरूरी है कि सारे पार्टीशन लाइक क्रॉस वैलिडेशन जितने के फोल्ड है तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करें, या फिर हम रुक सकते हैं? अब के फोल्ड पार्टीशन करके हम पूरा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किए तो K+1 वाले में भी तो कुछ भी ले सकते हैं ना, के वैल्यू आपको डिसाइड करना कितने फोल्ड करना। हाँ कितने फोल्ड वो सही है, लेकिन मैं बोल रही थी कि 1 2 3 4 5 जरूरी है कि हम वैसा ही करें, या फिर मैं F1 F3 F4 ऐसे ले सकती हूँ? कुछ भी ले लें आप, आएगा तो समेशन एक ही एरर का। मेरा मतलब यही था कि जैसे ट्रेनिंग डेटा हम पूरा ले रहे हैं बिना वैलिडेशन के, जैसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के, तो वो भी तो हम यही बोल रहे हैं ना कि डेटा ट्रेन हो जा रहा है, हमारा जो डिसीजन ट्री ट्रेन है हो रहा है, अब ट्रेन हो ट्रेन रहा हो रहा है। है, ट्रेन हो रहा है, आप ट्री को बढ़ाते जा रहे हैं, ट्री को आप बढ़ाते जा रहे हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन की तरफ, तो नेचुरली एरर कम होती चली जाएगी। हाँ जितना साइज बढ़ेगा, ग्रीन लाइन यही तो शो कर रही है ना। हाँ आप जितना साइज बढ़ाएंगे ट्री का, जितने आप सिंगल नोट पे जाते जाएंगे, ठीक है ना, ओके तो वो तो लास्ट में एक एक पत्ती पे पहुंच जाएंगे आप, हर ऑब्जर्वेशन पे, सिंगल ऑब्जर्वेशन, तो वो तो ट्री का साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के बाद जैसे हमारा यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्रॉस वैलिडेशन एरर कितना था, हमने रोक दिया वहां पे एक एक पॉइंट पे आके, यहाँ रोक उसके देंगे बाद साइज। हाँ ठीक है, और इसके बाद हम जब टेस्ट डेटा वो करते हैं, इंजेक्ट करते तो हैं उतना अपने। बायस नहीं होता है, फिर ये बायस नहीं होता अच्छा ठीक है है। बायसनेस रिमूव करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज की जाती है, ओके गॉट इट। समझ गए ना। हाँ तो ये तो मैंने बताया आपको। अब हमारा मान लीजिए टारगेट वेरिएबल है न्यूमरिक, जो आप लोगों ने पूछा था बीच में उससे किसी ने कि भाई या मैं तो नहीं रेड और पूछूंगी। ग्रीन की बात कर रहे हैं अब अपन, यदि टारगेट वेरिएबल हमारा वो है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई रैंडम नंबर ही मैंने आपके ऊपर के बॉक्स में दिया और आपसे बोला कि आप कोई भी रैंडम नंबर आपकी नोटबुक में लिख लीजिए,
और मैं उसको बता दूंगा कौन सा रैंडम नंबर है। ठीक है, आपने वो नोट कर लिया। ओके तो मैं क्या करूंगा कि जो टोटल बॉक्स में ऊपर वाले में रूट रूट उसमें ऊपर होता है ना, रूट है ये, हाँ तो इसका मैं मीन निकालूंगा। ओके इसका यदि आप मीन मेजर करेंगे तो 3.5 आ रहा ओके है, और मैं उसी को रूल बनाऊंगा। गॉट इट? अच्छा है ना? हम्म तो 3.5 से कम या 3.5 से ज्यादा। ठीक है, तो ये रूल 1 मैंने बनाया, 3.5 से कम है तो इधर चला गया, 3.5 के इक्वल या ज्यादा है तो इधर चला जाएगा। गॉट इट? ओके तो कम वाले जो नंबर है 3.5 से छोटे वो सब इधर आ गए, 3.5 से बड़े सब इधर आ गए। फिर मैं अभी वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो लाइन जो जा रही थी ग्रीन लाइन, वो नीचे तक कैसे जाती है उसको अपन समझ रहे हैं, अब उसको समझेंगे। तो इसका मीन निकाला तो 1 आया, और इसका मीन निकाला तो 6.5 आया। गॉट इट? ओके अब मैं बात करता हूँ एरर ऑफ प्रेडिक्शन। एसएससी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, है ना? इसमें हम क्या करेंगे, -2 -3.5 होल स्क्वायर, -1 -3.5 होल स्क्वायर, 2 -3.5 होल स्क्वायर, इन सबका समेशन। गॉट इट? सो फिर से बताइए। भाई xi माइनस एक्स बार, ओके ये x1 x2 x3 ये सब है, हाँ हम में से x बार हमको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ओके करेंगे ठीक और है सबका समेशन कर लेंगे। हाँ ठीक है ओके ऐसे यहाँ पे करेंगे, या ऐसे ही इसका करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला है इसको हम मान रहे हैं TSAC। क्या मान रहा हूं मैं यहाँ पे? TSAC, ऊपर वाले समेशन को, ओके फर्स्ट वाले के, ओके नीचे वाले का SAC1 और SAC2। ओके तो हमेशा ऊपर वाले का सम ऑफ स्क्वायर ग्रेटर होगा नीचे वाले के सम ऑफ स्क्वायर से, ओके उनके समेशन के सम ऑफ, है ना, ओके जितनी भी होंगी ब्रांच उनकी। व्हाट इट? ऊपर जो एरर होगी वो नीचे वाले से, नीचे वाले के समेशन से ज्यादा होगा। तो नीचे इसको हम बोल सकते हैं WSS टोटल को। तो WSS जो होगा विद इन सम ऑफ स्क्वायर, ऊपर वाले का ज्यादा है, नीचे वाले कम होते जाएंगे, तो विद इन सम ऑफ स्क्वायर एरर हमेशा कम होती चली जाएगी, इससे ट्री साइज बढ़ेगा। ये कहने का मतलब है, ट्री साइज बढ़ा ना, नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अच्छा ओके तो ऊपर वाले की ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। हाँ ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो इसकी ज्यादा होगी, नीचे की कम होगी। राइट या क्लियर हो गया पॉइंट? या तो ये जो पॉइंट है ये क्यों कम होती है, जिससे साइज बढ़ता है इसलिए कम होती है। व्हाट इट? ओके ठीक है हाँ ये समझ कंसेप्ट समझाना था। गया ऐसे करके मैं इसका भी मीन लूंगा, फिर इधर भी मैं करूंगा, तो ऐसे करके जो आपने नंबर सोचा होगा मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा, आपसे पूछ पूछ के। या पहले मैं पूछूंगा यार वो नंबर 3.5 से बड़ा है या छोटा, आप बोलेंगे छोटा है, फिर मैं पहुंचूंगा इधर पहुंचूंगा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा 1 से छोटा है बड़ा है, आप बोलेंगे 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा एक ही नंबर है -2। ओके यदि आप बोलेंगे 1 से बड़ा है तो फिर मैं 132 का मीन लूंगा, है ना। फिर मैं पूछूंगा कि ये इससे छोटा है बड़ा है, फिर आप बताएंगे और मैं फाइनली आपको बता दूंगा ये नंबर। अंडरस्टैंड? या तो ये एक तरीका है। अब आगे भी हम इसमें बहुत सी टेक्निक देखेंगे कि जो डिसीजन ट्री है उसके बाद भी जब हम इसके हाइपर पैरामीटर सेट करते हैं। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं कि जो उसको हम और ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। गॉट इट? ओके
तो ट्यूनिंग करेंगे, ट्यूनिंग तो नहीं करेंगे हम, कोई हमने पेड़ बना लिया इस हिसाब से, क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से। क्रॉस वैलिडेशन एक प्रकार की प्रूनिंग टेक्निक, हम इसको प्रून करते हैं डेटा को कि हमें कहाँ छटनी करना है। जैसे पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो हम ऊपर से उसकी प्रूनिंग करते कि नहीं करते डेटा की, पेड़ की, या वैसे ही डेटा की भी प्रूनिंग होती है ना, कि हमें कहाँ तक लेके जाना है उसको। ठीक है, ओके तो प्रूनिंग टेक्निक भी हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको प्रून करना है। ठीक है, ओके जिससे हमारा पेड़ भी छोटा रहे और हमें उससे आउटपुट भी सही मिल जाए। ठीक है, ओके। ये आप अभी ये जो डेप्थ की बात कर रहे हैं ना हाँ बाइनरी ये में? डेप्थ की, ये अपन प्रैक्टिकल उसमें समझेंगे उसको, ओके है ना, कैसे प्रूनिंग की जाती है। ओके अब जो नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री के बाद, भाई डिसीजन ट्री तो एक ही पेड़ था, गॉट इट। हम्म अब एक पेड़ ने जो डिसीजन दिया आपको उसको मानना है। हमने क्रॉस वैलिडेशन भी कर लिया, ठीक है, हम्म फिर भी हमें लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक जज की जो आप देखें ना, कोर्ट में एक जज की बेंच की जगह हाई कोर्ट में हमेशा बेंच होती है, 2 जज, 3 जज, 5 जज, हम्म क्यों रखी जाती है? और इसको ऑड इसलिए रखी जाती है कि टाई नहीं हो डिसीजन कभी भी, राइट है ना। तो यदि हम एक से ज्यादा पेड़ लगा लें और उनके सबके डिसीजन लें, फिर उनके एवरेज डिसीजन हम लोग यूज करें, गॉट इट। यदि सब्जेक्टिव डिसीजन है, कैटेगरिकल डिसीजन है, तो जिसका मोड ज्यादा आया होगा, ज्यादा लोगों ने जो चीज बोली होगी वो हम उसको फाइनल करें, गॉट इट। ओके ज्यादा पेड़ों ने जो आउटपुट दिए होंगे हम उनको फाइनल करें। रिग्रेशन होगा, न्यूमरिक आउटपुट है तो हम सबका मीन निकाल लें जो आउटपुट दिए हैं इन्होंने, गॉट इट। न्यूमरिक वैल्यू दी है सबने, कोई जो सेल्स प्रेडिक्ट करवाई हमने, हर पेड़ ने अपनी सेल्स प्रेडिक्ट करी, और उन ट्रीज से हमने कि जितने भी पेड़ों ने हमें सेल्स प्रेडिक्ट करी, उन सेल्स का हम लोग एवरेज ले लें और वो हम लोग फाइनल आउटपुट रखते कि भैया ये प्रेडिक्शन है फाइनल, गॉट इट। ओके तो वहां एक कंसेप्ट आया रैंडम फॉरेस्ट। अब रैंडम फॉरेस्ट में एक शब्द लगा है रैंडम। अब हम एक पेड़ नहीं बना रहे, हम 500 पेड़ का एक जंगल बना रहे, ओके और वो जंगल रैंडम है। देखिए, हम बगीचा नहीं लगा रहे हैं, आप अंतर समझिएगा, एक होता है बगीचा, बाग, और एक होता है जंगल। बाग यदि अमरूद का है तो उसमें पेड़ अधिकांश अमरूद के ही होंगे, या या आम का बाग है तो आम के ही पेड़ होंगे, है ना। या पर फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, जंगल में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं कि नहीं होते, या है ना। तो वो डाइवर्सिटी लाने के लिए यदि मैं एक ही तरह का पेड़ लगा लूंगा वो तो बाग हो जाएगा, जंगल तो बोल नहीं सकता मैं उसको। राइट तो जब एक ही तरह के पेड़ लगेंगे तो डिसीजन भी एक ही जैसे देंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? सर तो जब आप यहाँ पे सेल्स का रैंडम फॉरेस्ट जो बता रहे थे आप एग्जांपल में, तो फिर वो कोई भी आइटम का हो सकता है, लाइक एक एक जो ट्री बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के रहेंगे, हाँ, ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं, सेल्स तो टारगेट वेरिएबल मान रहा हूं मैं ना, टारगेट जो वेरिएबल है वो सेल्स आउटपुट दे रहा है, मैंने ये बताया था। हाँ क्लासिफिकेशन भी हो सकता है ना, क्लासिफिकेशन भी हो सकता है कि रेड या ग्रीन भी हम ढूंढ रहे हो तो वो टारगेट वेरिएबल होगा उस टाइम। अच्छा ओके तो क्लासिफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर लोगों ने क्या बोला, रेड बोली, तो हम रेड बोल देंगे। मोड, जो मीन मोड मीडियन होता है ना, हाँ कैटेगरी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मोड यूज करते हैं, कि जो अधिकांश है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके तो जो आउटपुट सबसे ज्यादा पेड़ों ने दिया होगा जिस क्लास को, उस क्लास को हम फाइनल क्लास या कैटेगरी बोल देंगे कि ये आउटपुट है साहब, ये प्रेडिक्शन है। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? मान लो मैंने 20 पेड़ लगाए, 20 में से 15 पेड़ बोलते हैं कि रेड बॉल है,
वो 5 पेड़ बोलते हैं, ग्रीन बॉल है, तो मैं मेरा फाइनल प्रेडिक्शन क्या होगा, रेड या ग्रीन? बताइए। बोलिए। फिर लेकिन मैं तो ये बोल रही थी कि डिसीजन ट्री जब भी जो भी है तो उसका तो एक ही रहेगा ना, आउटपुट डिफरेंट क्यों हाँ, होंगी? आप वही मैं बोल रहा हूँ, यदि बाग लगाएंगे तो एक जैसी आउटपुट मिलेंगे हर पेड़ के, पर यदि फॉरेस्ट लगाऊंगा मैं जिसमें हर पेड़ अलग होगा रेंडमली, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब रेंडमली अलग होगा तो वो हमें आउटपुट भी अलग अलग देगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। रेंडम जो शब्द लगा है इसके आगे, वही उसी का पूरा खेल है। क्या होता है कि मान लो आपके पास 10,000 ऑब्जर्वेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। 10,000 ऑब्जर्वेशन है, मैं जब पहला पेड़ बना रहा हूँ, उस जंगल में पहला पेड़ उगाऊंगा, तो मैं 10,000 में से 2,000 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? 2000। 2,000 ले रहा हूँ। और हम लोग इसमें बूट स्टेपिंग करते हैं, तो 2,000 को वापस 10,000 में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इट? बूट स्टेपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट नहीं लेना, डुप्लीकेट रोज नहीं ले रहा हूं हाँ, मैं उससे सिमिलर रोज बना रहा हूं। 2,000 से मैं 10,000 रो बना रहा हूं, मिलती जुलती, ओके, एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, व्हाट इट? कि ओके, कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम ज्यादा कर दी, अगले वेरिएबल की वैल्यू ये हल्की सी, अच्छा, और ओके, उससे मिला जुला डेटा, दैट इज कॉल्ड द बूट स्टेपिंग, नॉट ए डुप्लीकेसी। ओके, अंतर समझिएगा, बूट स्टेपिंग और डुप्लीकेट डेटा में अंतर होता है। डुप्लीकेट में सेम होता है पूरा का पूरा, रो आप सेम रो बना रहे हैं तो डुप्लीकेट है, हर वेरिएबल की वैल्यू सेम है उसमें, जो इसमें है वो डुप्लीकेट है। बूट स्टेपिंग ऐसा नहीं होता है, सिमिलर होता है, ठीक सेम है, नहीं होता है। अंतर समझ में आ गया आपको? या तो मैंने 2,000 से 10,000 ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर लिए, इसलिए करना पड़े कि मुझे मॉडल पूरा परिपक्व चाहिए, पेड़ की पूरी हाइट चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई एक नाटा पेड़ लग जाए 2,000 में, फिर मैं एक बड़ा पेड़, ऐसा नहीं, मुझे एक जैसी हाइट के पेड़ चाहिए, लगभग लगभग, है ना? ओके, तो एक तो रेंडमनेस ये हो गई कि मैंने जो 2,000 ऑब्जर्वेशन लिए थे ना, वो रेंडमली लिए थे 10,000 में से, राइट, तो ये एक रेंडमनेस हो गई। ओके, मैंने हर पेड़ के लिए ऐसे 2,000 ऑब्जर्वेशन लिए रेंडमली, 500 पेड़ों के लिए, डिफॉल्ट में 500 होते हैं इसमें। ओके, तो ये रेंडमनेस हो गई कि नहीं? हर पेड़ को एक अलग सीड मिला कि नहीं मिला? हाँ, यही सीड हुए ना हमारे, बीज तो यही हुआ ना ऑब्जर्वेशन। राइट, तो हर पेड़ का सीड अलग है। दूसरी चीज, जब हम एंट्रोपी निकाल रहे थे डिसीजन ट्री में, तो हम पूरे रूल्स की एंट्रोपी निकाल रहे थे, हर रूल की। राइट, जितने भी वेरिएबल है सबके पहले रूल बनाए, किसी के 3 रूल बने, किसी के 5 रूल बने, किसी के 2 रूल बने, जितने रूल बने हमने सबकी एंट्रोपी निकाली। ओके, और उसमें से जिसकी कम थी उसको पहले रखी, फिर जिसके इस प्रकार से हम रखते चले गए। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे मान लो मेरे पास 45 वेरिएबल्स हैं, तो मैं रेंडमली 4 वेरिएबल पहले सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहां मैं वेरिएबल भी कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं? रेंडम, ओके, बिना एंट्रोपी के। गॉट इट? 4 मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर 4 की एंट्रोपी नापूंगा खाली। अंडरस्टैंड? या तो 4 जब मैंने सिलेक्ट किए तो 4 के अपने रूल हैं, हर एक के अपने अपने रूल होंगे। 4 में से पहले के रूल कुछ, दूसरे के रूल कुछ, तीसरे के, चौथे के, फिर इन सब रूलों की मैं एंट्रोपी नापूंगा। गॉट इट? इनमें से जो कम होगी इसको मैं टॉप पे रखूंगा, और अच्छा, बाकी के फिर मैं वापस पटक दूंगा वेरिएबल। फिर मैं 4 लूंगा, फिर उसकी एंट्रोपी चेक करके फिर दूसरा रूल डिसाइड करूंगा कौन सी आएगी एंट्रोपी के हिसाब से। ओके, मतलब वो 4 का भी मैं पूरा नहीं खेल कर रहा हूं। 4 में से जो टॉप आया उसको रख दिया मैंने, 4 वेरिएबल में के जो रूल बने उनमें से जो टॉप एंट्रोपी, जिसकी लोएस्ट एंट्रोपी, उसको रखा, वापस मैंने सब वापस कर दिए। फिर मैंने 4 उठा लिए। हो सकता है कि वही वाला मतलब जो वेरिएबल मेरे पास दोबारा आए, पर उसका वो वाला रूल ना डिसाइड होकर के अब नेक्स्ट आएगा ना। भाई उस वेरिएबल में तो 5 रूल बने होंगे, तो पहला रूल ऑलरेडी लग चुका है, तो हो सकता है दूसरा रूल लगे या चौथा रूल लगे। व्हाट इट?
ऐसे करके मैं तो यहाँ भी रेंडमनेस आ गई। यस, हाँ, एक तो आपने ऑब्जर्वेशन रैंडमली लिए, एक आप वेरिएबल रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, राइट, तो तो हर ट्रिक भी पेड़ रैंडम बना। तो अलग ही प्रकार का बनेगा भाई। राइट राइट, ठीक है। हर पेड़ की ब्रांचेस भी अलग होंगी, हाँ, इसीलिए हम इसको रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, गॉट इट? यस सर, हमें पूरे 500 पेड़ डिफरेंट मिलेंगे। जब वो सब डिफरेंट पेड़ होंगे तो उनका नेचर अलग है, उनका सीड अलग डला है, सबके डिसीजन डिफरेंट होंगे। एक जैसे डिसीजन देंगे क्या सब? नहीं, कुछ पेड़ बोलेंगे ग्रीन बॉल, कुछ पेड़ बोलेंगे कि रेड बॉल। यदि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे जिनने ज्यादा बोला है, ज्यादा पेड़ों ने जो सा कलर बोला है वो कलर हमारा फाइनल है। ओके, व्हाट इट समझ? हाँ, यदि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, हमें आउटपुट चाहिए सेल्स, ये सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हर पेड़ एक सेल्स का फिगर देगा, सब अलग अलग फिगर देंगे, न्यूमरिक नंबर। हम उन सब नंबर का मीन ले लेंगे, ओके, वो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन होगा। ओके, ठीक है, अब समझ में आ गया? यस सर, पर डेटा साइंटिस्ट जितने भी हैं वो रैंडम फॉरेस्ट पे ज्यादा, हम स्टैटिस्टिशियन तो रिलाई नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि ये इंटरप्रिटेबल नहीं है। राइट, डिसीजन ट्री इंटरप्रिटेबल है क्योंकि वहां एंट्रोपी हम सबकी निकाल रहे हैं, और जिसकी कम एंट्रोपी उसको पहला रूल, जिसकी उससे ज्यादा है उसको दूसरा रूल, फिर तीसरा रूल, फिर चौथा रूल, ऐसा दे रहे हैं, है ना? हाँ, तो जब भी आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट का हम लोग डेटा साइंटिस्ट हमेशा अवॉइड करते हैं कि Okay. मॉडल ना बनाए। Okay. इंटरप्रिटेबल नहीं है ये। हर बार आपने एक बार बनाया, दूसरी बार बनाएंगे अलग हिसाब से वो ले लेगा ऑब्जर्वेशन। तो ये रैंडम फॉरेस्ट हम किसके लिए यूज करेंगे मैक्सिमम? ये कंसेप्ट आया डिसीजन ट्री के बाद, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने निकाला था रैंडम फॉरेस्ट। पर इसलिए पढ़ना पड़ता है कि आपको कभी इंटरव्यू में कई क्वेश्चन आ जाए तो हमें, और बनाएंगे भी हम लोग, इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, है ना? ओके, सीखेंगे कैसे बनता है, पर हम लोग अवॉइड करते हैं इसको। मैं एक बता रहा हूँ आपको, यदि कहीं टास्क दिया जाए कि भाई रैंडम फॉरेस्ट में बनाना है तो फिर बनाइए, कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है, ओके, है ना? तो समझ में आ गया आप लोगों को? जी, यस सर, पनिंद्र, Yes. चलो सब यस, हैं, या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबके? यस सर, अब अपन जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ऑन मंडे, हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है? ठीक है, और मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे ये फिनिश हो जाएगा डिसेंट्री, फिर इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट का देखेंगे, है ना? वो भी एक आध दिन में ही हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा क्लस्टरिंग और सेगमेंटेशन, ठीक है? ओके, वो करने के बाद हम लोग आएंगे टाइम सीरीज एनालिसिस पे, जो अपना लास्ट पड़ा होगा डेटा एनालिटिक्स का। ओके, ठीक है? ओके, और इसके बाद एक दो प्रोजेक्ट आप लोग करिएगा। सर मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, अगर आप पूछिए फ्री हैं पूछिए, तो मैं हाँ पूछती हाँ हूँ। पूछ लीजिए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना? पूछिए। सर मुझे एक तो के मीन्स का और जो के एन एन है जो वो उसके उसके पाइथन में कैसे करना है वो जानना है, बिना फंक्शन यूज किए। बिना फंक्शन यूज किए? हाँ, ओके, नियरेस्ट नाइबर वाला हाँ, नियरेस्ट नेबर और और के मीन्स पहला का, के मीन्स का भी। के मीन्स एल्गोरिथम, तो कंसेप्ट समझना है आप, क्या ठीक है, चाहते हैं आप? नहीं कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, बट वो पाइथन में कैसे करना है विद द डेटा दैट मुझे जो मिला है हम्म, उसके हिसाब से कैसे करना है।
अच्छा, आपका पास डेटा है? हाँ डेटा है। आप शेयर करिए, डेटा मुझे है ना मेल पे। ठीक है, मैं करती हूँ। तो हम ये कंटिन्यू करें कि कोई और टाइम पे मैं आपको कांटेक्ट करूँ? हाँ, आप मुझे डेटा शेयर कर दीजिए और जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया होगा ना, प्रॉब्लम हाँ स्टेटमेंट वगैरह जो है या वो कर दीजिए, तो मैं आपको फिर उसका गाइड कर दूंगा क्या क्या फंक्शन यूज होने हैं, है ना, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है। ठीक है। वो पूरा पाइथन में करना है तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो नहीं नहीं, इसीलिए हो बता जाएगा, रहे कोई थे। पाइथन भी ऐसा वो नहीं है, टफ लैंग्वेज नहीं है। अभी अपन जब पाइथन में आप आएंगे, एक्चुअली होता क्या है, सेलू मैंने देखा कि लोग क्या है, पाइथन को ही डेटा साइंस मान के बैठे हुए। ई लर्निंग जितने भी प्लेटफॉर्म है, राइट। चाहे वो ग्रेट लर्निंग हो, चाहे वो आपका अपग्रेड हो, मैं इनको मार मार मुसलमान बना रहा हूँ अब। अपग्रेड में तो मैंने वो रूल ले आया हूँ और वो लोग एग्री हुए हैं मेरे हर डिसीजन से अभी तक। ये बाई वीकली क्लास होती थी, मैंने वीकली करवाई। मैंने कि हमारा क्या फिर इंटरेक्शन खत्म हो जाता है 15 राइट। दिन में। बिल्कुल। तो वो वीकली अब उन्होंने बैच चालू की है, जो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था इनको। ये लोग आर पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, आर का खाली सतही पढ़ा देते थे और आगे बढ़ जाते थे पाइथन पे। हम्म। जबकि रूल ये है, हम लोग जो डेटा साइंटिस्ट जो प्रैक्टिकल यहाँ इतने समय से कर रहे हैं, कि पाइथन में इंटरप्रिटेबल बहुत कम होता है। राइट। आप यदि ईडीए थोड़ा बहुत कर लेते हो उसमें, ठीक है। ईडीए में दो चीजें है ना, एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एक इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है। हाँ। दोनों एक्सपर्टिव डेटा एनालिसिस के पार्ट है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव तो चलो ठीक हो जाता है एक बार पाइथन पे, है ना। डिस्क्रिप्टिव तो आर पे भी बहुत अच्छा होता है, पाइथन पे भी मान लो एक एक तरह से ठीक ठाक मिल जाता है हमें। पर इन्फ्रेंशियल पाइथन पे होता ही नहीं है ढंग से, या है ना। अब लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो पाइथन पे चाहिए। अब भैया यार देखो, आपको जहाँ फावड़े की जरूरत होगी वहां फावड़ा ही यूज करना पड़ेगा, जहाँ गेती की जरूरत होगी वहां गेती यूज करना पड़ेगी, कि नहीं करना प्रोफेसर तो पड़ेगा। मैटलैब वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन मैटलैब तो बहुत ही अ, अलग है और वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मेटलिब। तो या तो उससे बेहतर पाइथन ही रहेगा, आगे भी तो पाइथन ही कर रहे नहीं, पाइथन ही करो। मेटलिब का क्या है, थोड़ा लाइसेंस वर्जन पे और इन पे थोड़ा सा क्या रहता है कि आगे फिर ये दिक्कत होती है। हैं। हर राइट। कंपनी नहीं यूज करती है उसको, या है ना। इसीलिए तो ये नहीं। मैटलैब में नहीं फोकस कर रही हूँ, मैं सोच रही हाँ हूँ पाइथन पे करूंगी, और जो पॉसिबल है आर पे, जो हाँ, डिफरेंशियल वही मैं, वगैरह तो वो हाँ आर पे करूंगी इनिशियली, तो हाँ, डिस्क्रिप्टिव वही चीजें हैं कि मतलब अभी करूंगी। जैसे ग्रेट लर्निंग में परसों नरसों मेरा था डिस्कशन, बड़ी बड़ी बहस हुई इनसे। मैंने कहा कि देखो यार तुम लोग, नहीं सर वो तो पाइथन पे ही। तो मैंने कहा यार देखो यार, मैं हर चीज का अपना एक वो होता है, टूल का उपयोग होता है अलग प्रकार से। हम्म। मैंने कहा आप गेती की जगह गेती यूज करोगे, फावड़े की जगह फावड़ा यूज करोगे, है ना। या आपको यदि गड्ढा खोदना है तो आपको सब्बल गेती चाहिए, पर आपको मटेरियल उठाना है तो फावड़ा चाहिए, है ना। या या तो मैंने कहा आप हर चीज को, पूरे डेटा साइंस को पाइथन क्यों बनाए दे रहे हो राइट। भाई। कोई टूल यदि मेरे को ज्यादा इंटरप्रिटेबल है, मुझे उससे ज्यादा इंसाइट्स मिल रही हैं, तो मैं उस टूल का उपयोग करूंगा बिल्कुल। पाइथन की जगह, या आर का उपयोग करूंगा। तो उसी ग्राउंड पे काफी बहस हुई। तो मैंने कहा मैं क्यों यूज करूंगा पाइथन का। पाइथन का जहाँ उपयोग है मशीन लर्निंग में, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, जैसे अपन रैंडम फॉरेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपन डिसीजन एंट्री कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा पाइथन करता है, ठीक है ना। अभी अपन पाइथन में करेंगे तो और इजी हो जाता है ये चीजें, है ना। या तो ये वाली जो चीजें ये आने वाली है और आ भी रही है, तो मुझे ये वाली चीजें पाइथन में करनी है, और जो हम इन्फ्रेंशियल कर रहे थे अभी तक जो आर में, हाँ मुझे आर में करनी है, तो हाँ, मुझे मतलब पाइथन में भी कितना। अपन सीखेंगे ये सब हाँ चीजें, पाइथन में भी सीखेंगे, इन्फेंशियल सीखेंगे। पर इन्फेंशियल में आपको खुद समझ में आएगा, जब पाइथन पे इन्फेंशियल करेंगे तो आपको समझ में आएगा साला कितना इंटरप्रेटेबल आउटपुट दे रहा है, या वो आर में हमें कितना मिलता था, या है ना।
तो Yes. वो चीजें वहीं अपन को समझ में आ जाती हैं, और इस पे मीडियम में और दूसरे जो जर्नल्स हैं उसमें काफी आर्टिकल्स भी आए इस बात पे, डिबेट पे, कि भाई जो ईडीआई इज बेटर इन आर, हमें दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए हमेशा, लैंग्वेजेस आर और पाइथन को। पर ये जो जितने भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये लोग पाइथन 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 को ही लेकर के चल रहे हैं पूरे उसमें, है ना। भाई विजुअलाइजेशन कहीं मुझे पावर बीआई से बहुत अच्छा मिलता है तो मैं विजुअलाइजेशन वही यूज करूंगा ना। हाँ, या टैबल्यू से कोई अच्छा मिल रहा है तो मैं उसी को यूज करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं पाइथन की विजुअलाइजेशन लूं, बिल्कुल। है ना, या आर के विजुअलाइजेशन लूं। भाई जो मुझे ज्यादा इंटरप्रिटेबल चीज लगेगी, जो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, मैं वैसे विजुअलाइजेशन लूंगा, चाहे वो किसी भी टूल से आ रहा है। यही मतलब होता है ना भाई, क्या मतलब क्या है चीजों का, कि आप जितना अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओ इनसाइट्स। Yeah. तो ये चीजें हैं। अभी आपको के एन एन है और आपको के मीन्स है ना। हम्म। ठीक है, के मीन्स में तो हम लोग अलग अलग मीन ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं के मीन्स में, है ना। तो वो कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझना रहेगा, बता दूंगा। और सपोर्ट वेक्टर मशीन है क्या? नहीं। इसमें क्या है, डिफरेंट एल्गोरिथम आगे, पर अपन लोग उतनी लेते नहीं है यहाँ पे कोर्स में। नाइफ बेस भी है ना। नाइफ बेस है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, के एन एन है, फिर आपका के मीन्स है ना। ये सब एल्गोरिथम है अलग अलग, पर कोर्स में हम लोग जनरली ना तो अपग्रेड में पढ़ाते हैं ना सिंपली लर्न में पढ़ाते हैं ये सब। क्या है इसका, ये ज्यादा स्टैटिस्टिकल है, ज्यादा इंटरप्रेटेबल है, ओके। लोग इसको इतना लेते नहीं है। अभी आजकल क्या चीजें हो गई ऑटोमेशन में ज्यादातर, तो वही चीजें यूज करते हैं, डिसीजन ट्री भी आ जाते हैं लोग कि उससे कर लो। सपोर्ट वेक्टर मशीन थोड़ा बहुत जरूर यूज करते हैं कहीं पे, कुछ एक जगह पे। ठीक है, तो आप मुझे वो सेंड करिए, है ना। चलिए, या मैं अभी कर रही हूँ। है ना, और मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या मैं करके देखूंगा, क्योंकि बड़ी चीज नहीं है, पर मैं चाहूंगा आप करें, मैं गाइड करूंगा आप, या क्योंकि या मेरे को बिल्कुल पाइथन में करने के लिए तो आप बिल्कुल गाइड करिए, मैं अभी कोशिश करती हूँ स्क्रिप्ट वगैरह। हाँ ठीक है, सो ये वाला मैं भेजती हूँ फिलहाल। ठीक, ओके, है ना। थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।